Students, welcome to my YouTube channel Maths with Harpal Singh। A+1 क्लास ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਕੋਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਕਸਡ ਲਾਈਨ। कुछ बेसिक गल्लां मैं दस देवां। पहला टेक अनदर लाइन विच इज़ रोटेटिंग लाइन। दिस लाइन इज़ फिक्स्ड and the second line is rotating. It can be rotated. Suppose we have two lines, one is fixed and another line is rotating, revolving. This line can revolve around this line, this fixed line। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸਡ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਿਸ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ that will be a cone, that will be a cone like this। ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਵਰਟੈਕਸ ਆਫ ਕੋਨ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਫਿਕਸ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਕੋਨ। ਫਿਕਸ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਕੋਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਰਟੈਕਸ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੋਨ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਅਪਰ ਕੋਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅਪਰ ਨੈਪ and the lower part of cone is called lower nap। ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਨ ਨੂੰ ਅਪਰ ਨੈਪ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਕੋਨ ਦੇ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੋਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ। ਜਦੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ the section of the cone will be a circle। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਲੇਨ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਨ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੇਨ ਜਿਵੇਂ ਬਲੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟੇਢਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਟਿਆ, ਕੋਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟੇਢਾ ਕੱਟਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਐਂਗਲ ਲੈਸ ਦੈਨ 90 ਡਿਗਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਐਂਗਲ ਲੈਸ ਦੈਨ 90 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ which is called ellipse। The portion of the cone to be cut off is called ellipse। ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਟਿਲਟ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਉਡਾ ਦਵਾਂ, ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕੋਨਾ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ।
ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੋਨ ਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਕੋਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੁੱਕਰ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਕੋਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਲੇਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕੋਨਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋਣਾ, ਲੋਅਰ ਵਾਲਾ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਪਰ ਨੈਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੇਗਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ। ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪਾਰਟਸ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਲਿਪਸ, ਥਰਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ। ਕੋਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 4 ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਫਿਗਰਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਈਏ ਸਰਕਲ ਤੇ। ਸਰਕਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਰਕਲ। ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਵੈਨ ਅ ਪੁਆਇੰਟ moves in a plane, when a point moves in a plane so that its distance from a fixed point always remains the same. When a point moves in a plane so that its distance from a fixed point always remains the same, the path of moving point will form a circle. The path of moving point will form a circle. मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਕਸਡ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਮੂਵਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਕਸਡ ਆ, ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੂਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਸੇਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਮੂਵਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਸਰਕਲ। ਦ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੈਂਟਰ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਰਕਲ। ਐਂਡ ਦ ਫਿਕਸਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ radius of circle. Fixed distance is called radius of circle.
फिक्सड डिस्टेंस ये बन गया रेडियस। हुण वेखनी है इक्वेशन की बनेगी सर्कल की। ये तो एक डेफिनेशन होगी सर्कल की कि सर्कल किवें बनता है जदों एक पॉइंट रिवॉल्व करता है एक फिक्सड पॉइंट के अबाउट। जिवें एग्जाम्पल के तौर पर आपां वेखदे हां कि जिवें पिंडां दे बंदे होण कि मान लो एक फिक्सड पॉइंट नूं असीं सपोज कर लैंदे हां जिवें एक किला है, किले दे उपर कोई मझ बन्नी आ, ठीक है, तो ये उहदा रस्सा है। हुण जदों रस्सा बन्निया होएगा तो जिहड़ा कोई हॉर्स ला लो या कोई मझ बफैलो वगैरह कुछ भी आपां मान लीए, तो ये जदों भी रिवॉल्व करेगा मतलब इत्थे आले दुआले सारे घाह है, इन्हें चुगना है तो सारा ये वाला एरिया कवर करेगा। यही कर सकदा, इस तो बाहर जा नहीं सकता। जे असीं मैक्सीमम केस मान के चलीए तो इन्ना ये फिर एरिया ऑफ सर्कल ये तो असीं समझ सकते हैं। हुण ये जिहड़ा सर्कल बनिया है जिहदा रेडियस आ रहा सेंटर सी आ, इहदी जे इक्वेशन की गल करिए तो सर्कल दियां इक्वेशन 4-5 तरह दी होणगियां। सब तो पहला आएगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल वो होएगी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल की होएगी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इस सर्कल का सेंटर बन जाना है साढ़े कोल 0 0। सेंटर ऑफ दिस सर्कल विल बी 0 0 एंड रेडियस बन जाएगा आर। मतलब इस सेंटर के कोऑर्डिनेट आउणगे 0 0। इनू ज्योमैट्रिकली वेखांगे तो इदां दा सर्कल बनेगा। ये एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस, मतलब इदां दा कोई भी सर्कल रेडियस घटाउंदे जाओ सर्कल छोटे होंदे जाणगे, रेडियस वधाउंदे जाओ सर्कल वड्डे होंदे जाणगे, पर सेंटर इन्हां सारियां सर्कल का 0 0 ते ही आएगा। 0 0 मतलब ओरिजिन के उपर। इन्हां सारे सर्कल्स नूं बोलांगे आपां कॉन्सेंट्रिक सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म दे विच। हुण एग्जाम्पल के तौर पर इदां आ जांदा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 25। तो क्वेश्चन आएगा फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। तो सेंटर इहदा हमेशा 0 0 ही आ जाना। सेंटर की आएगा 0 0 जो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होएगा। तो रेडियस क्या आ जाना 5, क्योंकि 25 इज़ 5 स्क्वेयर। 25 इज़ 5 स्क्वेयर। इत्थे आर स्क्वेयर है, इनू आपां लिख सकते हैं 5 स्क्वेयर। सैकेंडली हुण मान लो सर्कल साडा ओरिजिन की बजाय इत्थे चुक के लै जाने आ। इत्थे इहदा सेंटर जिहड़ा है इधर नूं डिस्टेंस एच कवर कर गया तो उपर नूं के, मतलब सेंटर चला गया एच के दे उपर। तो फिर जिहड़ा सर्कल बनेगा उहदी इक्वेशन की आएगी साडे कोल, क्योंकि सेंटर नूं हुण आपां अपनी पोजीशन तो हिलाया तो ये सैकेंड फॉर्म बन जाती है सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल। सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल कहती एक्स माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। रेडियस इस सर्कल का भी आपां आर ही लैके चले हैं, पर सेंटर जिहड़ा है वो हुण की ले लिया एच के। एग्जाम्पल के तौर पर जिमें इदा लिखा एक्स माइनस 2 होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 25। तो इनू कंपेयर करांगे स्टैंडर्ड फॉर्म के नाल सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल के नाल। तो इत्थों एच कितना आ जाना 2, के आ जाएगा 3।
एच के सेंटर की ही एच के तो सेंटर फिर कितना है ना 2,3। स्टैंडर्ड फॉर्म का याद रखना है हमेशा सेंटर 0 0 होंदा है, सेंट्रल फॉर्म का सेंटर एच के होंदा। जेकर इदा आ जाए x + 2 होल स्क्वेयर y + 3 होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 25। इथे कंपेयर करोगे x - 2 होल स्क्वेयर y - 3 होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वेयर तो फिर h की वैल्यू आ जानी है -2 k आ जाएगा -3। इसका मतलब सेंटर आ गया -2 -3 एंड रेडियस आ जाएगा 5। सेंटर आ गया -2 -3 रेडियस आ गया 5। इसका मतलब -2 -3 कोऑर्डिनेट्स इधर आउणगे, इधर सर्कल बन जाएगा। इदा ही इधर भी बन सकता, इत्थे भी बन सकता, एक्सिस के उपर भी बन सकता। जे एक्सिस के उपर आए तो इदा की इक्वेशन मान लो x² + y - 2 होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 25 होवे तो x वाला कोऑर्डिनेट 0 हो गया, x वाल नूं 0 तो y वाल नूं 2। इसका मतलब इसका सेंटर कितना आ जाना 0, इत्थे x² लिखा है, इनू x - 0 होल स्क्वेयर लिख सकते हो, 0,2 सेंटर इहदा आ जाना तो रेडियस तो 5 ही आ। इसका मतलब ये वाई एक्सिस के उपर इत्थे 0,2 जे मैं पॉइंट सपोज कर लवां, दिस सर्कल विल बी ऑन वाई एक्सिस। इदा प्लेन दे विच किते भी सर्कल नूं आपां ड्रॉ कर सकते हैं तो उहदी इक्वेशन तो ही सानूं पता लग जाया करेगा उस सर्कल की पोजीशन प्लेन दे विच कित्थे आ। ये 2 फॉर्म्स आपां पढ़ियां सर्कल दियां। इस तो बाद पहली फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, रेडियस ये आर ही रहेगा, सेंटर हमेशा 0 0। सेकंड फॉर्म सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल, इन दिस फॉर्म सेंटर इज h, k एंड रेडियस इज r। थर्ड फॉर्म इज जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। थर्ड general form of circle, standard, central and general form of circle। ये होएगी साडे कोल x² + y² + 2gx + 2fy + c is equals to 0, general form of circle। x² + y² + 2gx + 2fy + c is equals to 0। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ सेंटर वेखना है तो सेंटर होएगा -g, -f, दैट इज एक ही -g -½ कोफिशिएंट ऑफ x -½ कोफिशिएंट ऑफ y एंड रेडियस। ये रेडियस फाइंड किवें करांगे, रेडियस इज इक्वल्स टू g² + f² - c, g² + f² - c। ये तो याद करने वाली गल हो गई जनरल फॉर्म। क्वेश्चन कितना आएगा, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल x² + y² + 10x - 8y +5 इज इक्वल्स टू 0। आप सब तो पहला कंपेयर करना है x²। जनरल फॉर्म दे विच x² एंड y² का कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल, हमेशा बराबर होने चाहिए। x² दे नाल लगी टर्म ते y कुछ नहीं लगा, 1 अंडरस्टूड है। जे मान लो 2 ये होंदा 2x², ये भी 2x² ही होएगा। जे ये 2x² आ गया तो 3x² आ गया तो कभी भी सर्कल नहीं बन सकेगा। वो अगे जाके आप दसांगे किवें बनेगा किवें नहीं बनेगा। इनू कंपेयर करोगे तो जनरल फॉर्म नाल 2g जिहड़ा है 2g 10 दे इक्वल आ गया एंड 2f किहदे इक्वल आ गया -8 दे, c 5 आ गया साडे कोल।
जी की वैल्यू फाइंड करोगे तो 5, एफ की वैल्यू फाइंड करोगे -4 तो सी आ गया 5। ਇਹਦਾ मतलब सेंटर की ही -G, -F। जी का आंसर पॉजिटिव है, इत्थे -5 आ जाना, जिहड़ा नैगेटिव है उत्थे +4 आ जाना। सेंटर मिल गया। तो रेडियस कितना आ जाना G² मतलब 5² 25 प्लस F² -4² करोगे तो प्लस का 16 आ जाएगा। G² प्लस F² -5 ये कितना आ जाएगा 36 का रूट आ जाना 6। इदा आप सेंटर ते रेडियस फाइंड कर लिया करांगे जनरल फॉर्म चों। जनरल फॉर्म तो सानू मतलब पोजीशन भी पता लग जाया करनी। हुण हरेक जिहड़ी सर्कल दी फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड होवे जां सेंट्रल होवे, ये सारियां जनरल दे विच पहुंच जांदियां ने जनरल फॉर्म तक। क्योंकि जे सेंट्रल फॉर्म दिती आ x - 2 होल स्क्वेयर प्लस y - 3 होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 25, इनू जे खोलीए तो की बनना x² प्लस 4 - 4x प्लस y² प्लस 9 - 6y इज इक्वल्स टू 25। x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 6y, ये 4 प्लस 9 13, तो इधर आके माइनस हो जाना, तो माइनस के 12 बचने। ये किहड़ी फॉर्म बन गई जनरल फॉर्म। हुण सेंटर पता लग गया, रेडियस पता लग गया। जे ये जनरल फॉर्म तो मैं सेंट्रल फॉर्म च जाना हुंदा तो इनू की लिख देना ही x माइनस माइनस प्लस हो जाना प्लस 5 होल स्क्वेयर प्लस y - 4 होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 36 6 का स्क्वेयर। मतलब इस जनरल फॉर्म नू आपां सेंट्रल फॉर्म च कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंट्रल फॉर्म नू हमेशा जनरल फॉर्म च कन्वर्ट किया जा सकता है। सो ये तो पढ़िया आपां सर्कल बारे। हुण इहदे क्वेश्चन दिते होणगे जिहड़े बड़े ईजी ने, बस आपां इन्ना ही काम करना है सर्कल का कि सर्कल की इक्वेशन बनानी आ जाए। जे सेंटर ते रेडियस दिता तो इहदा इन कन्वर्स जे वेखो, मतलब कि जे सेंटर रेडियस दिता इक्वेशन बनानी आ जाए, इक्वेशन दी है तो सेंटर रेडियस कढ़ना आ जाए। 11.1 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन आ, सेंटर दिता है 0 0, रेडियस दिता है 2, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। की बनेगी सेंटर दिता है सेंट्रल फॉर्म x - 0 होल स्क्वेयर प्लस y - 0 होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वेयर। सेंट्रल फॉर्म यही ही x - h होल स्क्वेयर, h तो k दिता है r दिता है, ये 0 लाने की लोड़ नहीं, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 4, ये साडा आंसर आ जाएगा। इदा ही फिफ्थ सम आ, सेंटर दिता है -a, -b एंड रेडियस इज स्क्वेयर रूट ऑफ a² - b²। हुण x माइनस ते माइनस a प्लस a बन जाना, यदि फॉर्म जो बनावांगे y माइनस प्लस हो जाना b होल स्क्वेयर, r² मतलब स्क्वेयर रूट ऑफ a² - b², इहदा होल स्क्वेयर कर दो, स्क्वेयर दे नाल रूट कैंसल होएगा, तो ये आ गया x प्लस a होल स्क्वेयर y प्लस b होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a² - b²। ये भी आंसर दिता जा सकता है, या इनू एक्सपैंड कर दो x² प्लस a² प्लस 2ax y² प्लस b² प्लस 2by a² माइनस b²। हुण a² दे नाल ये लैफ्ट साइड ते आके a कट्टिया जाएगा, b² 2 टाइम्स हो जाना, तो आंसर क्या आ जाना x² प्लस y² प्लस 2ax प्लस 2by, ए b² तो इधरों b² आके पॉजिटिव हो जाना, 2 टाइम्स ऑफ b² इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0, ये साडा आंसर आ जाना। सो नैक्सट एट सम जेडे नैक्सट टाइप ने 6, 7, 8 ये तुहानूं मैं एग्जाम्पल्स दे विच ही करा दिते। एक 9th सम मैं करवा दिना, 2x²
प्लस 2y² माइनस x इक्वल्स टू 0। देखो इनू आपां कर सकते हैं जनरल फॉर्म के नाल कंपेयर। जे मैं x² का कोफिशिएंट 1 करना है, x² प्लस y² 2 कॉमन कर लिया, -1/2x इज इक्वल्स टू 0। ए 2 दे नाल सारी इक्वेशन नू थ्रू आउट डिवाइड कर दिता। हुण इनू कंपेयर किहदे नाल करांगे? कंपेयर इट विद जनरल फॉर्म। एंड जनरल फॉर्म की ही x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इथों 2g मैनू मिल गया -1/2 एंड 2f की वैल्यू 0, c की वैल्यू भी 0 आ गई। इत्थे y का कोफिशिएंट है नहीं है 0, कॉन्सटेंट भी है नहीं। g मिल गया मैनू -1/4, f 0, c भी 0। सो सेंटर कितना आ जाना? सेंटर आ जाएगा -g -f, माइनस ते माइनस प्लस हो जाना 1/4, लिखण की लोड़ नहीं, नाल 0। तो रेडियस की होंदा g² प्लस f² माइनस c। g² -1/4, -1/4 का स्क्वेयर करोगे तो 1/16 हो जाना, प्लस 0 माइनस 0 करोगे तो यह आ जाना 1/4। सेंटर भी मिल गया तो रेडियस भी मिल जाएगा। नैक्सट आपां नैक्सट है साडे कोल फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। 10th सम है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 1 एंड 6, 5। ये 2 पॉइंटा जो सर्कल पास करता है एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन 4x प्लस y इज इक्वल्स टू 16। आपां एक सर्कल की इक्वेशन लभनी है। वो सर्कल इन्हां 2 पॉइंटा चों पास करता है तो उस सर्कल का सेंटर जिहड़ा है वो 4x प्लस y इज इक्वल्स टू 16 लाइन दे विचों पास करेगा, लाई करेगा सेंटर इस लाइन के उपर। हुण 2 पॉइंट दिते ने, इन्हां दे विचों पास कराउण वास्ते आपां लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इस सर्कल की इक्वेशन आपां मन ली। इहदे विच g f ते c दियां जे वैल्यूज मिल जाण, g f ते c दियां वैल्यूज मिल जाण तो फिर आपां सर्कल की इक्वेशन तैयार कर देवांगे। हुण जी एफ ते सी फाइंड करने वास्ते की करना पएगा? क्योंकि ये सर्कल 4, 1 ते 6, 5 चों पास करता पाया एज 1, मतलब सर्कल पासिस थ्रू 4, 1 एंड 6, 5। देयरफॉर जे पास करता है इसका मतलब x की जगह ते 4 तो y की जगह ते सारे थां 1 लिखांगे। 4² 16, 1² 1 प्लस 4 × 2 8g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इनू नंबर 2 कर लो एंड इनू 2 लिखण तो पहला सिंपलीफाई थोड़ा जिहा कर लो। कितना बन गया 8g प्लस 2f 17 प्लस 17 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इदा ही सैकेंड पॉइंट चों भी, क्योंकि ये सर्कल पास करता इत्थे मैं लिख दिता सैकेंड दे विच हुण x 6 भरना है तो y भर लेना 5। 36 प्लस 25 प्लस 6 भरांगे x की जगह तो आ जाना 10x
सॉरी 12x 12g प्लस y की जगह तो 5 भरोगे तो 10f प्लस c इज इक्वल्स टू 0। मतलब 12g प्लस 10f 36 प्लस 25 61 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। नंबर 3। हुण इन्हां चों G F ते C दियां वैल्यूज़ फाइंड आपां करनियां। इस सर्कल दा जिहड़ा सेंटर हुंदा है जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल दा सेंटर वो की हुंदा -G -F। ऑल्सो सेंटर -G, -F लाइज ऑन लाइन। किहड़ी लाइन दे उपर? इहदे उपर। इसका मतलब जिथे x है उत्थे की लिख देवांगे -G, F की जगह ते लिख द y की जगह ते -F। मतलब -4G -F इज इक्वल्स टू 16। इनू नंबर 4 आपां लिख सकते हैं। हुण नंबर 2, 3 एंड 4 तीन इक्वेशनस ने साडे कोल एंड तीन ही अननोन ने। इन्हां तिन्हां दी वैल्यूज़ फाइंड करनी आ। पहला नंबर 2 ते 3 नू सिंपलीफाई करना। 2 एंड 3 इन्हां दे विचों C नू रिमूव कर सकते हैं। 2 - 3 कर लो या नंबर 3 माइनस नंबर 2 कर लो। 12 - 8 4G। क्या मारा पर जल्दी। 10F - 2F 8F। 10F - 2F 8F। 61 - 17 61 - 17 ये बन जाना 44। तो C - C हो गया 0। राइट हैंड साइड पे 0 आ गया। इनू नंबर 5 कह लो। हुण 4 ते 5 इन्हां दोनों दे विच साडे कोल 2 वेरीएबल आ गए। G ते F इन्हां दियां वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लैनियां। इस चों पहला 4 कॉमन कर लो फिर ही इनू नंबर नाम देवांगे। 4 कॉमन करोगे 2F प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। से इट एज नंबर 5। सॉल्विंग 4 एंड 5 ये हुण खुद भी कर सकते हो। इत्थे -4F आ, इत्थे +2 -4G -F इनू 2 दे नाल मल्टीप्लाई करके सारी इक्वेशन नू ते ऐड कर दो। G -4G 8G -7G बन जाना। इनू 2 दे नाल कीता माइनस दा 2F उत्थे प्लस दा 2F कट्टे जाणगे। इत्थे राइट हैंड साइड ते 16 है लैफ्ट ते लै आओ -16 इक्वल्स टू 0 बन जाना। माइनस दा 32 प्लस 11 -32 ये जो 2 दे नाल मल्टीप्लाई किया -32 प्लस 11 कितना हो जाएगा? -32 प्लस 11 जो करांगे तो 32 दे विचों 11 माइनस कर देने 21 रह जाना। G की वैल्यू फाइंड करोगे तो -3 आ जाएगा। G की वैल्यू फाइंड कर ली। नंबर 4 या 5 च पुट करो। पुट इन 4 -4G G की जगह तो 4 पुट की G की जगह तो आपां ओहदी वैल्यू -3 पुट की तो प्लस दा 12 बन जाना। 12 - F -16 इक्वल्स टू 0। सो F की वैल्यू कितनी आ जानी है? -16 प्लस 12 यानी कि ये बन गया साढ़े कोल -F -4 इज इक्वल्स टू 0 तो F की वैल्यू आ गई -4। G आ गया। G एंड F दियाँ वैल्यूज़ नंबर 2 या 3 किसी भी पुट कर दो तो C की वैल्यू आ जाएगी। नंबर 2 च पुट कर देने। पुट
G and F in number 2 नंबर 2 च पुट किया इत्थे G की जगह ते -3 -24 हो जाना F की जगह ते -4 -8 हो जाना +17 प्लस C इज इक्वल्स टू 0 हुण 24 + 8 32 32 माइनस 17 32 माइनस 17 एक कितना आ जाएगा 15 सो C की वैल्यू कितनी आ जानी है 15 पुट द वैल्यूज ऑफ G F एंड C इन दिस इक्वेशन नंबर 1 तो साढ़े कोल सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी G की वैल्यू कितनी आई -3 इत्थे कितना आ जाएगा फिर -6 F की वैल्यू -4 आई -4 × 2 8 इत्थे आ जाना -8y C की वैल्यू 15 आई तो 15 मतलब लास्ट से लिखना है तुसीं हुण मेरे को जगह घट बची इस करके मैं इत्थे वैल्यू इहदे जी पुट करनी है सो ये साडे कोल इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई सो ये साडा सर्कल दा सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया इस तो बाद नैक्सट लैक्चर दे विच आपां पढ़ांगे इलिप्स पैराबोला एंड हाइपरबोला सो अज लई इन्ना ही थैंक यू वेरी मच।